Hey guys, welcome to my channel Maths वाली। लेक्चर 2 में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सो हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे विच इज क्रैमर्स रूल फॉर टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड सेकंड क्रैमर्स रूल फॉर थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल एंड देन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। सो लेट्स सी फर्स्ट क्रैमर्स रूल फॉर टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये आपने 10th में पढ़े होंगे, सो लेट्स रिवाइज इट। So consider two equations in two variables. So these are two equations. So यहाँ पे हमको दो स्टेप करनी है. First we have to find d, dx and dy. Then we will find x and y. So सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम d कैसे फाइंड करते हैं. So d फाइंड करने के लिए हमको फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट लिखने हैं which are a1 and a2. Then सेकेंड कॉलम में हमको y के कोएफिशिएंट लिखने हैं means b1 and b2. So it will be like this. Then we know how to solve this determinant. It's like this. अब next देखिए हम dx and dy कैसे फाइंड करेंगे. फर्स्ट dx. So ये डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे. यहाँ पे हमको x के कोएफिशिएंट की जगह फर्स्ट कॉलम में क्या x के कोएफिशिएंट की जगह हमको लिखना है इक्वल टू वाले कोएफिशिएंट्स विच आर c1 एंड c2. सो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे c1 c2. देन सेकेंड कॉलम में सिंपली कोएफिशिएंट्स रहेंगे b1 एंड b2 कोएफिशिएंट्स ऑफ y. सो इट विल बी लाइक दिस. देन वी नो हाउ टू सॉल्व दिस dx बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ वी विल फाइंड dy. अब ये डिटर्मिनेंट dy कैसे लिखते हैं. सो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले x के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे विच आर a1 एंड a2. नाउ सी एज वी आर फाइंडिंग फॉर y. सो यहाँ पे हम y के कोएफिशिएंट की जगह इक्वल टू वाले कोएफिशिएंट्स लिखेंगे विच आर c1 एंड c2. सो इट विल बी लाइक दिस. नाउ वी हैव d, dx एंड dy. देन सिंपली वी कैन फाइंड x एंड y बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. x इक्वल्स टू dx अपॉन d and y equals to dy upon d. Now second application which is Cramer's rule for three equations in three variable. Consider these are three equations in three variables. Now यहाँ पे भी सेम स्टेप्स है. स्टेप 1 is to find d, dx, dy and dz. Then step 2 is to find x, y and z. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि d कैसे फाइंड करेंगे. So to find d, first column में we will write coefficients of x which are a1, a2 and a3. Then second column में we will write coefficients of y which are b1, b2 and b3. Coefficients of z which are c1, c2 and c3. So it will be like this. So next we will find dx. अब dx में in first column instead of writing coefficients of x we will write coefficients of right hand sides which are d1, d2 and d3. Then in the second column we will write coefficients of y which are b1, b2 and b3. Then in third column we will write coefficient of z which are c1, c2 and c3. Then next we will find dy. So dy में हमको क्या करना है. फर्स्ट कॉलम में हमको coefficients of x लिखना है जो कि a1, a2 and a3 है. Then second column as we are finding for dy. So second column में हमको instead of writing coefficients of y we will write coefficients which are in equal to side which are d1, d2 and d3. Then in third column we will write coefficients of z which are c1, c2 and c3. Then next we will find dz. अब dz के लिए क्या करना है हमको. In first column we will write coefficients of x which are a1, a2 and a3. Then in second column we will write coefficients of y which are b1, b2 and b3. Then in third column जैसा कि हम dz फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे z के कोएफिशिएंट्स के जगह पे राइट साइड इक्वल टू वाले कोएफिशिएंट्स लिखेंगे विच आर d1, d2 and d3. सो इट विल बी लाइक दिस. नाउ हमारे पास आ गया d, dx, dy and dz. देन वी कैन फाइंड x, y and z by using this formula. So this is about Cramer's rule. Now we will see example based on this. This is an example. So step 1 we will find the value of d means determinant. So how to solve this. अब determinant के लिए suppose हम साइड में ऐसे समझने के लिए लिखते हैं x, y, z. फर्स्ट कॉलम में we have to write the coefficient of x. यहाँ पे क्या है coefficient of x कुछ नहीं यानी 1. यहाँ पे क्या है
2, यहाँ पे क्या है साथ में, कुछ नहीं है यानी कि 1. Similarly in the next column write the coefficient of y. यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे -1. साइन को हमेशा ध्यान में रखिए. एंड देन लास्ट कॉलम में आएंगे कोएफिशिएंट ऑफ z which is 1, 1 and 1. Now solve this determinant. अब मैं ये वाला थोड़ा डिस्क्रिप्शन में अच्छे से बताती हूँ डिटेल में. नाउ सी, पहले हमको फर्स्ट एलिमेंट लेना है. ओके, देन एज वी हैव चूजन दिस एलिमेंट, सो ये रो एंड कॉलम छोड़ के कौन सा एलिमेंट है, 1, 1, -1, 1. सो 1, 1, -1 एंड 1. देन यहाँ पे प्लस साइन था. अब नेक्स्ट माइनस, अल्टरनेटिव साइन. नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा लेंगे, ये वाला -1. अब हमने ये सिलेक्ट किए तो ये कॉलम ये रो छोड़ के एलिमेंट कौन से दिख रहे बचे हुए, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. देन माइनस की साइन, अभी प्लस की साइन. यहाँ पे क्या लेंगे 1. अभी हम चूंकि ये एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये रो एंड ये कॉलम छोड़ के कौन सा एलिमेंट है, 2, 1, 1, -1, 2, 1, 1, -1. अब 2/2 डिटर्मिनेंट इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 into 1, 1. देन माइनस 1 into -1, -1. देन माइनस माइनस प्लस 1. माइनस 1, 2 into 1, 2. माइनस 1 into 1, 1. प्लस 1, 2 into -1, -2. 1 into 1, -1. Now 1 plus 1, 2. 2 into 1, 2. Then minus 1, 2 minus 1, 1. 1 into 1, 1. Then plus 1. Minus 2 minus 1, -3. Equals to, ये क्या हो जाएगा 2 minus 1, ये हो जाएगा -3. Now 2 minus 1 will be 1. 1 minus 3 will be -2. So क्या है वैल्यू हमारी d की, -2. Then in the next step we have to find the value of dx. Now this is very important step. ये फर्स्ट पहले समझ में आना जरूरी है. अब फर्स्ट हम dx के लिए फाइंड कर रहे हैं. ओके, ऊपर हम लिखते हैं x, y, z. ओके, अब यहाँ पे हम चूंकि x के लिए फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट लिखने की बजाय हम इक्वल टू वाले कोएफिशिएंट लिखेंगे. इक्वल टू वाले कोएफिशिएंट कौन से हैं, 4, 1 एंड 0. dx के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए x के कॉलम में x के कोएफिशिएंट की जगह इक्वल टू वाले कोएफिशिएंट लेंगे, 4, 1 एंड 0. अब y के जगह पे y के कोएफिशिएंट 1, 1, -1, 1, 1, -1. z के जगह पे 1, 1, 1. सेम हमको अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. सो 4, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करती हूँ क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया. सो 1 into 1 ये हो जाएगा -, +1. देन -1. देन 1 into 1, 1. देन 1 into 0, -0. देन +1. 1 into -1, -1. 1 into 0, -0. नाउ 4, ये 1 + 1, 2. 2 into 4, 8. minus 1 into 1, 1. Then minus will become minus. So 8 minus 2 is 6. So क्या है हमारी dx की वैल्यू 6. सिमिलरली हम dy फाइंड करेंगे, लेकिन अब इसमें देखो चेंजेस क्या है. यहाँ पे dy के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसलिए x के जगह पे x के कोएफिशिएंट, z के जगह पे z के. लेकिन y के कॉलम में y के कोएफिशिएंट के जगह पे हमको क्या लिखना है, इक्वल टू वाले कोएफिशिएंट. इक्वल टू वाले कोएफिशिएंट क्या है, 4, 1, 0. क्या है 4, 1, 0. तो हम y के जगह पे क्या लिखेंगे, 4, 1 एंड 0. एंड x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के कोएफिशिएंट जो कि है 1, 2, 1. 1, 2, 1. एंड z के जगह पे 1, 1, 1. अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको dy की वैल्यू मिलेंगी -4. ओके. सिमिलरली dz, अभी dz के लिए भी हम सपोज यहाँ पे लिख देते हैं. अभी dz के लिए करना क्या है, हमको x y के कोएफिशिएंट एज इट इज लिखने हैं. x y के कोएफिशिएंट क्या है, 1, 2, 1. 1, 2, 1. y के जगह पे 1, 1, -1. 1, 1, -1. और z के यहाँ पे हम dz के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसलिए z के कॉलम में z के कोएफिशिएंट के जगह पे इक्वल टू, यानी 4, 1, 0. 4, 1, 0. इसको हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे. सो हमको dz की वैल्यू मिलेंगी
-10। dz की क्या वैल्यू मिलेंगे हमको -10, ये आप सॉल्व करके चेक कर लीजिए। अभी हमको dx की वैल्यू मिल गई, dy की वैल्यू मिल गई, dz की। अब लास्ट स्टेप 3 is to find x, y, z। अभी इसके फॉर्मूले बहुत सिंपल है। x के लिए dx अपॉन d, y के लिए dy अपॉन d, z के लिए dz अपॉन d। ओके, अब dx की वैल्यू क्या आई है हमारी 6 एंड d की वैल्यू क्या आई थी हमारी -2, ये क्या हो जाएगा -3। dy की वैल्यू क्या आई हमारी -4 एंड d की वैल्यू -2, सो 2। अभी dz की वैल्यू क्या आई है -10, d की क्या आई है -2, सो 5। सो क्या आई हमारा फाइनल आंसर? x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 5। So this is required answer. So this is solution of given system of equation. So ये था by using Cramer's rule how to solve equation. Thanks for watching. Bye. Take care.